A courtesy meeting was held on Tuesday, the 30th of April 2024 to meet and interact with Advocate Ashish Sellar, President BJP Mumbai, and Mr. Yashwant Jadhav. Following members were present: Mr. Iqbal Memon, Officer, Aziz Machiwala, Yusuf Malkani, Mr. Imran Fruitwala, Mrs. Razia Bai Chasmawala, Mr. Sohail Khandwani, Mr. Shakir Batliwala, Mr. Shakil Batliwala, Mr. Iqbal Chunawala, Mr. Javed Parik, Mr. Afroz Hassan Fatta, Mr. Qayyum Machiwala, Sahar Banu Gala, Mr. Tawfiq Kapadia, Mr. Iqbal Chunawala, Mr. Razak Sopariwala, Mr. Wasim Naviwala, Mr. Atiq Memon, Mr. Anwar Nagaria, Mr. Tahar Mitha, Mr. Shafi Niyama, Mr. Abdul Aziz Sandha, Mr. Anwar Pishori, Mr. Salim Merchant, Mr. Hedi Bhavnagarwala, Mr. Abdul Aziz Sandha, Mr. Mansoor Zariwala, Mr. Asif Kas, Mr. Javed Fatta, Mrs. Ruxana Nagwadaria, Mr. Javed Sheikh, Mr. Anas Tinwala, special guest Advocate Ashish Sellar and Mr. Yashwant Jadhav, former Chairman Standing Committee MCGM. Meeting was commenced with recitation of verses from the Holy Quran by Mr. Hafiz Iqbal Chunawala. Mrs. Razia Bai Chasmawala delivered welcome address in honor of Ashish Sellar. Mr. Imran Fruitwala delivered welcome address and greeted the special guests. Mr. Iqbal Memon, Officer, appraised the special guests about the activities of AIMJF, including installation of PU in Azad Maidan with capacity of 10,000 litre cool, filtered drinking water and financial assistance for repairs and renovations of storm-affected schools in Konkan irrespective of caste, creed and religion. He further requested to use their sources for prevailing peace, prosperity and harmony in state. Mr. Sohail Khandwani and Mr. Farid Noori also present their views. Ashish Sellar appreciated the Memon community and assured complete cooperation and support to society. Mr. Yashwant Jadhav also assured their cooperation and support to society. Mr. Iqbal Memon, Officer, felicitated Mr. Ashish Sellar and Mr. Yashwant Jadhav with shawl. President of Mumbai BJP, third term. President of Board of Control for Cricket, India PCCI, former Minister of School Education, Sports and Youth Welfare, MLA of Bandra West Legislative Assembly, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के। सर, आपका स्वागत है हमारी ऑल इंडिया मेंबर फेडरेशन के ऑफिस में। आप भाजपा के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, आपका स्वागत है। थैंक यू। कावेद भाई है यहाँ और सब यहाँ बैठे, अफरोज भाई सब लोग दिन रात काम करते, पूरा बोर्ड, ईच एंड एवरी वन। यहाँ पर जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह है ना, ये सब बॉम्बे के हमारी मेमन कम्युनिटी के 3 क्लास में आते और सब जिम्मेदार है। सबके पीछे बहुत से लोग हैं जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो ये सब काम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है। साथ साथ एक चीज ये भी इसके अंदर भी है कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने सोचा कि हम तो काम करते हैं, लेकिन अभी हमारे को और भी लोगों को लाना है। जैसे लेडीज विंग का बताया, लेडीज विंग के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसमें लेडीज आ गया है। लेडीज के लिए स्किल सेंटर पूरे इंडिया में बनाए गए ताकि लेडीज लोग एम्पावर हो, लेडीज लोग काम सीखे और काम करें, खुद के बल पर हो जाए, वो लोगों को मांगना ना पड़े। और ऐसे करके 15 प्लस हमारे स्किल सेंटर चलते पूरे इंडिया में और लेडीज को भी एम्पावर किया जाता है। फिर साथ साथ हमारे यूथ के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, उसके अंदर 10% भी मेमन नहीं है। यस, 30% मुस्लिम होगी और 70% नॉन मुस्लिम। सबके लिए वो रखा गया है कि सब हर लेडीज अपना एम्पावरमेंट के लिए। फिर यूथ के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, तो यूथ लोग भी कम्युनिटी वर्क में आए, सोशल काम में आए, यूथ जुड़े, यूथ का प्लेटफॉर्म बना। आज यूथ जॉब सपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, एम्पावरमेंट के लिए। बिजनेस क्लब हमने स्टार्ट किया कि यूथ एक दूसरे से नेटवर्किंग करे, आपस में बिजनेस करे और उसके साथ साथ वेलफेयर और सोशल का भी काम करते थे। फिर छोटे मोटे काम करते रहते, जैसे ब्लड डोनेशन का कैंप है, ऑर्फनेज में जाना, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करते। तो ये यूथ के लिए यूथ एम्पावरमेंट है। फिर डिजास्टर विंग बनाए। डिजास्टर विंग इसलिए बना कि कुछ भी कभी भी कहीं भी कोई कैलामिटी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक टीम हो जो 24/7 तैयार हो और वो पहुंच जाए उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। ये बना स्पोर्ट्स, कोई भी धर्म मजहब कोई भी इसके अंदर कोई कास्ट रिलीजन कुछ में सबके लिए काम करो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क। आज़ाद मैदान में धरना दिया जाता है तो वहाँ पर पानी का पियाव बहुत तकलीफ थी। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से ठंडा पानी, फिल्टर पानी 10,000 लीटर का टैंक ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने लगाया। जी, ये काम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने दिया है। जब कोकन में बाढ़ वगैरह आई तो स्कूलें तराश हो गई थी। साल 2 साल तक कोई
पुरुषाना हाल नहीं था। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन सारी स्कूलों का रिपेयर करवा के दी, स्कूलों को चालू करवा के एक कौम है। और हम चाहते हैं कि हमारा एक तहरीक चलाएगा, हमारी मेमन बरादरी के अंदर जो लेने वाले थोड़े बहुत हैं कि कभी मार्केट में, बाज़ार में कहीं पर मांगने के लिए नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ पर हमारे पास आते हैं, हम उनको मदद करते हैं, उनके हाउसिंग की मदद करते हैं, मेडिकल की मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये मेमन कौम जो है पाँव पे खड़ी हो जावे। एक भी मेमन जो है वो मांगने वाला नहीं है। अभी आप आने के पहले फ़ोन आया कि भाई आप जो कॉलेज की स्कीम निकाले हैं वो 1 एकड़ में मेरी बाप की ज़मीन है, मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ। 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन है, मगर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को डोनेट करेंगे। इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा हम वो कॉलेज की वहाँ पर ओपनिंग करेंगे और कॉलेज बनाएंगे वहाँ पर। तो कॉलेज के अंदर ये नहीं है कि हमारे मेमन बरादरी के तो थोड़े लोग होते हैं जो 5-10% भी फ़ायदा नहीं उठाते हैं, मुस्लिम लोग 10-20-25% फ़ायदा उठाते हैं। मगर हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे इतनी बड़ी मेहनत करते हैं, इतना पैसा जमा करते हैं, तो कौन उसका फ़ायदा उठाता है? मगर इंसान फ़ायदा उठाता है इंसानियत के लिए। जब कॉर्पोरेशन में थे, एडवोकेट थे, तो मेरा नवी एंट्री हुई थी माइन दरगाह में और मैं इनसे गाइडेंस ले रहा था एज अ कॉलेज। सो इज टू गाइड मी दोज टाइम्स एंड आई विश आई वॉज इनके में एरिया में वोटर होता और विच एवर पार्टी वॉज आई वुड हैव वोटेड फॉर। आई एम नॉट सेइंग कि ही वॉज इन बीजेपी और दिस पार्टी एज अ पर्सन। जब मैं इनसे बात कर रहा था इन्होंने बोला कुछ, तो मैंने इकबाल भाई का वीडियो जो हमारा लास्ट इसका था, लास्ट मीटिंग में दिखाया। इन्होंने देखते ही 5 मिनट में बोला मुझे ये मिलना है। तो आज ये खास आए कि ऐसी कौन सी शख्सियत है जो इतना अच्छा काम करती है और ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो इतना छुप के काम करती है, इतना दान करती है, लेकिन कभी कोई आवाज़ नहीं करती। और मैं बताऊँगा कि ठीक है इलेक्शन का माहौल है तो सभी हमारे पास आएंगे, लेकिन मैंने इनको पर्सनली जितना जाना है ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही अंदर से नर्म, सॉफ्ट, सेकुलर और बहुत स्ट्रेट आदमी है। अगर कोई काम इनसे होता है तो ये बोले कि हाँ कर नहीं होता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, डिसिप्लिन इनके अंदर बहुत है। आपने देखा होगा दूसरे नेताओं के जैसा जो है इंतज़ार नहीं करवाते, इनके पास एक लिस्ट तैयार होती है और हर जगह आने वाले का भी अपॉइंटमेंट होता है, इनको जहाँ जाना भी है स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करते हैं। ऑल इंडिया मेमन जमात के इस प्रोग्राम में हमारे मेमन भाइयों और बहनों को अपील करने और उनके किए हुए कामों को अप्रिशिएट करने मैं और यशवंत जाधव जी यहाँ पर आए हैं। साउथ मुंबई ये मुंबई का और पूरे देश का भी हार्ट है और इसके विकास में जो गति की आवश्यकता थी वो गत 10 सालों से यहाँ पर सही अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मोदी साहब की सरकार के और राज्य में जो अभी एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजित पवार जी की सरकार है, उस सरकार की काफ़ी योजनाओं को इस क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा सकता था और उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी हुई और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के नागरिकों को उसको भुगतना पड़ा। ये योजनाएं को कार्यान्वित करने के लिए अभी यामिनी जाधव जी के नेतृत्व में साउथ मुंबई में हम नई योजनाओं को साथ में लेकर आएंगे। बहुत ही नेक काम ये संस्था करती है और कोई भी जाति, धर्म, भाषा, भेद को छोड़कर करती है। लोगों को तकरीर देना, लोगों के लिए जिसको कहते हैं कि भाई ड्रग्स फ्री, तंबाकू फ्री ये योजना चलाना, लोगों की घरों के लिए मदद करना, लोगों के दवादारों के लिए मदद करना, मुझे लगता है नेक इंसानियत का काम हो रहा है। और इसमें कहीं पर भी जो भी ज़रूरत सरकार की तरफ से केंद्र राज्य दोनों की हो वो करने के लिए हम खुद को कमिट करते हैं। सर, जिस तरह से इस इलाके में बहुत छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, 10 बाई 10 के रूम है और बहुत जर्जर किस्म की हैं, तो क्या क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए आप करेंगे? देखिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो या क्लस्टर डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है और जो कानून बने हैं डेवलपमेंट के वो उनको अंतिमता पहुंचना ज़रूरी है। इस काम के लिए ज़मीन पर काम करने वाले लोगों की ताकत चाहिए और वो ताकत हमारे महायुति के साथ है, हम लोगों तक वो पहुँचे। सबका साथ सबका विकास यही नारा है और हिंदुस्तान के विकास में सबको लेकर चलना ये हमारा कर्तव्य है।